So, welcome again, dear students. जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इस चैप्टर में हमने कुछ एक चीज़ें जो स्टडी करी उसमें हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे थे। तो सब जानते हैं आइसोमेरिज्म जो होता है वो आपके कितने टाइप का हो गया। बेसिकली 2 टाइप्स का हो गया। फर्स्ट कौन सा हुआ? स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल के मैंने 4 पार्ट्स आपको बताए थे, राइट। हम लोग सेकेंड टाइप के बारे में बात करें जिसको हम कहेंगे आपके स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। और स्टीरियो आइसोमर्स भी जो है हमने 2 टाइप से आपके डिस्क्राइब करे थे। और 2 टाइप्स कौन से थे? एक था आपके ज्योमेट्रिकल और एक था आपके ऑप्टिकल, राइट। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बेसिक कंस्ट्रक्शंस को हम स्टडी कर रहे थे और लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमने डिस्कस किए थे वो बताया था मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए, राइट। ये मैंने आपको ब्रीफिंग कर दिया है। ये सभी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं और अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लास्टली डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स जो है वो स्टडी किए थे। वो एग्जांपल्स जो है हमारे पास थे MA4 टाइप था, एक हमारे पास था MA2 B2 टाइप, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Well, you see, we are talking about M, A2, B, C type. Here you can see that the A monodentate ligands, they are in numbers of 2. Different ligand B and C is there. So how can we express geometrical isomers in this particular type? Well, let's see that. So we have the central metal ion that has to be placed at the center, and 2A monodentate ligands, they are placed just like that, and there is a B monodentate ligand and C monodentate ligand. Here you can see this particular construction will form. Here the 2A monodentate ligands are in a single plane, right? So basically this will be the cis structure. But if we put this A in place of C and C is getting the place at A, then we get the different structure. So the central metal ion, and here is the A ligand and A ligand across, and this C moves just like that, and B is here. So you can see that the different structure will form. Here the A and this A, they are going cross. What it means? It is the trans structure, right? So I have already explained that those constructions which have same molecular formula, obviously the molecular formula will be same, but the 3D geometrical structures are quite different. You see that the 2A are in the same plane, and these 2A are, they are going across. That means it's a trans structure. So basically this will be the MA2BC type. Well, we can see one example here. I have in this example platinum
It's NH3 Cl and pyridine. You know that the pyridine is like this. Okay, fine. So what will be the construction? You just put this central metal platinum at the center, and two pyridines. One pyridine is here, one pyridine, and this is NH3, and here is Cl. So you can easily judge that the two pyridine are at the same plane. So what exactly it is? It is the cis construction. But when this pyridine moves in place of Cl and Cl is going to this direction, then we get the different structure. So Py, it's NH3, HCl and Py. So you see that we get the trans structure. Okay. So in exam, maybe the question will come that the PTNS3Cl Py whole 2, this construction is actually showing the geometrical isomerism. Then your answer will be yes, of course, because it is actually giving what? Two construction, the cis construction and the trans construction. All right. So this is the end of MA to BC type. All right. Now we are moving towards the fourth one, that is MAB2 type. Here you can see the AB2. That means that what is AB? AB will be you can say didentate ligand, or you can say bidentate ligand. All right. So let's see that it will give the geometrical isomer or not. So here we have the type MAB2 type. Let's see the construction. So here the central metal ion at the center, and AB, this will be the didentate ligand. So how it actually create the bond? Let's see. This is the bidentate ligand. So here we have A, and these A and B are connected to each other, and it is creating, B is creating the coordinate bond with central metal ion, just like this. And similarly, one more, you can say AB bidentate ligand we have. So it will also create this kind of bond. All right. So you see, this will be the basic structure of this complex. So what is AB? AB is bidentate ligand, because A is creating the coordinate bond here, and B is also creating the coordinate bond, just like this, right? You can just mention like this. Okay. You see that A and this A both are in a similar what? Plane. Clear? And these B, they are at the similar plane. They are very close. So we can say this will be the cis structure. All right. So this will be the cis structure in MAB2 type. Correct? Let's see that the trans structure of this type. So we have the central metal ion, which is placed at the center, and two coordinate bonds are actually creating by these bidentate ligands, just like this. Okay, what I'm doing here,
I'm just putting this B here and A is going down, then let's see that what the kind of construction will come. So we have A at this side and B at this side. So this is the construction we get. Okay, now you can see that the trans structure means this A is here, which is creating the coordinate bond with the central metal ion, and here is A. Both are going across. That means it is the trans structure. All right. So we can say the MAB2 type gives two types of construction. They are the cis and the trans construction. All right. Okay. So we can give an example of this. You can just try at home. That is a PT at GLY. Okay, 2. All right. So what exactly the GLY? It is glycinate. It is exactly the NH2CH2COO negative. This is the construction of what is GLY. All right. You just try at home. Find that it will show the geometrical isomer, yes or no. All right. So here is the end of MAB2 type. Now we have the last type, that is MABCD type. Let's see. Well, it is also very easy. Talking about the MABCD type. Okay. So we have the central metal ion at the center, and we have A ligand, monodentate ligand. B is also a monodentate ligand. C is here and D is here. Okay. Priority wise, you can say the A and B, they are very close, and C and D, they are close, right? So this will be the construction for you. So this A and B is close, right? And no doubt C and D are close. So this will be the cis structure, correct? But in this structure, central metal ion, A and B is across, means like this, and there is D and C, right? So you can say that the A and B going across in this construction, and D and C are across. So this will be the trans structure. Alright, so this is the end of geometrical isomers. In particular, I have already talked about the coordination number 4, right? Now we move on to the next one, that is the coordination number 6. Let's start. So welcome again. So we are talking about the coordination number 6, and what the coordination number 6 is, where the central metal ion, which is surrounded by how many numbers of you can say coordinate bonds? Obviously 6, right? Suppose this will be the structure. So it is the octahedral structure. Why it has been octahedral structure? Let's see. Square planar, and this will be the pyramidal structure, and lower down it will also give one more pyramid. So 4 faces at the upper hand side and 4 faces at the lower side. That means it is the overall octahedral structure. In other words, we can say it will be the structure of what? Square bipyramidal structure. Alright,
let's see the coordination number 4, or sorry 6 here. So there are basically 3 types: MA6, MA4B2 type, MAA2B2 type. Here is AA is didentate or bidentate ligand. Alright, so we will start the first one, that is MA6 type. Here we go. MA6 type. Alright, here is the central metal iron, and suppose 4A ligands, they are placed like this. So this will be the square planar structure, and here is these 2A ligands. So do you think that this kind of construction will give the geometrical isomer? It will never give, right? Because all the similar kind of ligands we have in Hindi, we can say कि यहाँ देखिए ए जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे एक जैसे हैं. आप देख लीजिए, सभी एक जैसे लिगेंड्स हैं. मैं इस लिगेंड ए को अगर इस तरफ प्लेस करता हूँ या इस लिगेंड को इस तरफ प्लेस करता हूँ, कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं आने वाला है. तो अगर कोई पूछता है MA6 टाइप क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो आपका आंसर आएगा नो, राइट? So in simple way we can say MA6 type will never give any kind of geometrical isomer, right? Well, let's see the example of it. Suppose we have chromium, and we have 6 times NH3 and 3 plus ions. Alright, so just put the chromium at the center, and 6 NH3 just like this, ligands, same construction you get, similar construction. Alright, so there is no cis and trans. Alright, here you can say MA6 type, it will never give any geometrical isomer. All right. Well, dear students, we have the next type, that is MA4B2 type. Okay, MA4B2 type, right? इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले आप सब लोग ये बताएं, सब लोग जो ये ब्रेक्स मिले हैं आपको, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. क्लास 12th है भाई, क्लास 12th है, ऑब्वियसली बड़ी क्लास है, बोर्ड क्लास है, तो थोड़ा थोड़ा डेली स्टडी करेंगे तो अच्छा है, बेहतर है, राइट? और भी डेली जो भी आपको लेक्चर मिलते हैं तो उनको आप ज़रूर से ज़रूर उनको संभाल के भी रखें, और कभी जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो रिपीट करके देखें उनको, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास में है, राइट? और एक चीज़ तो बनती है, वो ये कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक और जो अच्छे कमेंट्स जो हैं आपके हमें चाहिए, राइट? और पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, हाँ, कोई इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ओके, थैंक यू. तो अब हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके MA4B2 टाइप, राइट? तो MA4B2 टाइप जो है इसका कंस्ट्रक्शन कुछ कैसे बन सकता है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो है बात करनी है.
तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन लिया, राइट, और आप देखें यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, देखिए ए, करेक्ट, इस ए को 1 मोर एंड 1 मोर, राइट। अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करें तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा, और ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, ओके। तो चारों आपके ए जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं हमने प्लेस कर दिए हैं, करेक्ट। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास में बी मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, और ये कितने नंबर्स में है, 2 नंबर्स में है, राइट। तो हम कर क्या रहे हैं, लेट्स सी। एक बी को हमें लगाना होगा कुछ इस तरह से, क्लियर, और एक बी को हमें कुछ इस तरह से क्रिएट करना होगा, ओके। अब आप गौर से देखें तो बी, राइट, ये बी जो है ये इस प्लेन के ऊपर की तरफ है, और ये जो बी है इस प्लेन के डाउनवर्ड्स है, राइट। अगर इसको हम थोड़ा सा डॉटेड बनाएं तो कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ये नीचे से, ऑलराइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, क्लियर, या नो डाउट इनके बीच में भी 180 डिग्री है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह का, ये जो आपके एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री पर, क्लियर, 90 डिग्री। अब देखिए ये भी और ये भी जो है दोनों एक दूसरे के अक्रॉस हैं, और अक्रॉस जब कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होगा, तो हमेशा उसको बोलिएगा ट्रांस, क्या कहेंगे, ट्रांस, क्लियर है। इसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी, राइट, और ये बी दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, और इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, राइट। अगर मैं इसका सिस कंस्ट्रक्शन बनाना चाहता हूँ तो सिस कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, वो क्या, इस ए को मैं ले जाता हूँ इस बी के पास, और बी को इस ए के पास ले जाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे अदला बदली हो गई। मीन्स सेंट्रल मेटल आयन तो यही है, और हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से इन तीनों ए लिगेंड्स को नहीं टच किया है, ये एज इट इज रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, इस बी को हम ले आए इस तरफ, तो बी आ गया है ये रहा, ऑलराइट, और इस ए को इस बी का प्लेस दे दीजिएगा, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज बी अनटच्ड, ओके। तो आप यहाँ गौर से एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, वो क्या, हाँ, क्या चीज़, कि ये बी और ये बी जो है, करेक्ट, ये क्लोज है। पहले ये बी इस तरफ था तो क्रॉस हो गए थे, अक्रॉस सीधा चला गया वर्टिकल, लेकिन ये बी थोड़ा क्लोज है, राइट, इसका इसके है, तो इनमें रिपल्शन हो सकता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुई वो कैसा हुआ, सिस कंस्ट्रक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब भी आप MA4 B2 टाइप को डिस्कस करें तो उसके अंदर ट्रांस और सिस कंस्ट्रक्शन आपके बनेंगे। ट्रांस कंस्ट्रक्शन जब भी अगर आता है तो उसको बोलेंगे मर, 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 राइट। और ये जो आपके सिस कंस्ट्रक्शन जो होती है, ठीक है, इसको कहा जाएगा फेक, ठीक है। तो मर स्ट्रक्चर ट्रांस होगी और फेक स्ट्रक्चर कौन सी होगी, आपके सिस, ऑलराइट। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जिससे आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा, राइट। Well, you see that MA4B2 टाइप, तो यहाँ हमारे पास में एक क्वेश्चन है, वो ये है CrNH3 होल 4 Cl2 प्लस
क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या ये सिस्ट्रांस बनाएगा, क्या ये फेक और मर्ज स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेगा। लेट्स सी दैट। तो हमने किया क्या है, क्रोमियम को सेंट्रल मेटल आयन पे रखा है। NH3 ये मॉलिक्यूल्स आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो इनको आप स्क्वायर पेनल स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। वी हैव 2Cl मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इनको हमने इस तरह से वर्टिकली अरेंज किया है। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर ये Cl और ये Cl क्रॉस हैं, ठीक है, वर्टिकली अरेंज्ड हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन सा हुआ, ट्रांस, इसको हम कह सकते हैं आपके मर्ज स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन हमने एक छोटा सा काम किया, वो ये देखो जरा गौर से, बस एक छोटा सा काम, इस Cl को यहाँ से रिमूव किया और इसको हमने कहाँ पहुँचाया, इस NH3 पर, और इस NH3 को हमने पहुँचा दिया यहाँ पर। ऐसा भी कर सकते हैं कि इस Cl को आप इधर पहुँचा दें और इस NH3 को इधर पहुँचा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कंस्ट्रक्शन वाइज जो डिस्टेंस यहाँ आ रहा है वही डिस्टेंस इसका यहाँ होगा, क्लियर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट्स अप टू यू दैट व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से कंस्ट्रक्शन यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर, राइट। तो किया क्या, इस Cl को ले गए इस तरफ और NH3 को ले आए इस तरफ, क्लियर है। अब देखो गौर से, ये Cl और ये Cl दोनों क्लोज नहीं हो गए, क्लोज हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, आपके सिस स्ट्रक्चर, अनस्टेबल रहेगा, रिपल्शन होगा, यहाँ पर हिंड्रेंस पैदा होगा, ठीक है। इसलिए कौन सी स्ट्रक्चर है ये, फिक्स स्ट्रक्चर, क्लियर है। सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ व्हाट Ma4B2 टाइप, ओके। आई थिंक सबको ये क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, आई होप सो, ठीक है। रिपीट करके जरूर देखें, नहीं समझ में आ रहे तो रिपीट जरूर करें। ऑलराइट, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दैट इज Ma2B2 टाइप। इसको देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कैसे होंगे। इट्स इंटरेस्टिंग वन, ये कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं जो बनाना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, मगर इतना ज़्यादा है नहीं, राइट। तो बना के देखते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। यहाँ पर आप देखें तो सेंट्रल मेटल आयन है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक साथ है, इसका मतलब बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड बोल दीजिए, और ये 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स भी यहाँ मौजूद हैं, राइट। तो करें क्या, सेंट्रल मेटल आयन लीजिए, करेक्ट, और यहाँ पर जैसे मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 4 बॉन्ड्स तो ये बनेंगे। अब ये 4 बॉन्ड्स देखिए ज़रा किस तरह से मैं इन बाइडेंटेड लिगेंड्स के साथ में क्रिएट कर रहा हूँ। तो बाइडेंटेड लिगेंड जो है मेरे पास में ये रहा, देखो मैं इनको आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे, क्लियर है। ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें ये साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है एक ही, और इसमें ये साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं है, ये आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। इसी तरह से हम रिपीटेशन करेंगे इस तरफ, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर कोई बुक वगैरह में देखेंगे तो पंखे से नज़र आएंगे, राइट, उनके विंग्स जैसे। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको मिला, और मैं यहाँ इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर डिज़ाइन देने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे। तो ये हो गया इसका, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये जो है आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके रेडी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास B2 टाइप है, तो B2 मीन्स वी हैव 1 B which is placed here and 1 B is here, alright। तो देखें तो यहाँ पर ये B और ये B दोनों क्रॉस चले गए हैं, क्रॉस चले गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, yes, this is the yes मर्ज स्ट्रक्चर, राइट, या फिर ट्रांस कह लीजिए, क्लियर, मर्ज स्ट्रक्चर बोले तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा वो हमें आपके नोटिस करना है, राइट। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन जो है कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए सेंट्रल मेटल आयन ये रहा,
ऑलराइट, इसको थोड़ा अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट रबिंग ऑल दोज। कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन, इस पोर्शन को मैं अनटच रख रहा हूँ, राइट, कुछ ऐसे जैसे हमने पहले क्रिएट किया था, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ए को, इस ए वाले पोर्शन को मैं यहाँ इस बी के पास लेके जा रहा हूँ। ऑलराइट, आई मीन टू से एक छोटा सा काम कर रहे हैं, वो ये कि इस ए को हम ले जाते हैं इस बी के पास और इस बी को ले आते हैं इस तरफ, राइट। तो देख लेते हैं, बी को लेके आ रहे हैं नीचे, तो बी का कंस्ट्रक्शन तो हो गया ये। क्लियर है, ठीक है। ऑलराइट, बी यहाँ पहुँच गया है और ये बी वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास ऑलरेडी इस तरह से मौजूद है। अब मैंने क्या किया, देखो इस ए को पहुंचाना है कहाँ पर, इस बी की तरफ। तो क्या हुआ, देखिए जरा गौर से देखिएगा कैसा कंस्ट्रक्शन मिलेगा। देखिए ये ए हमारे पास है ऑलरेडी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ से इस ए को बी पर पहुंचाया है, तो ये ए यहाँ आ गया है, तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा डिज़ाइन होगा, राइट। अब आप बता सकते हैं कि ये सिस है, ट्रांस है, क्या है। गौर से देखें, यहाँ पर बी और ये बी क्रॉस है और यहाँ ये बी और ये बी दे आर क्लोज। ऑलराइट, इसका मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन है वो है आपका सिस कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये आपके फेक होगा। क्लियर है। तो दिस इज द स्टेबल वन एंड दिस इज less stable. Due to the hindrance we can say it is less stable. Alright, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर जो है वो आप कीजिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, और वो है ये COCl2En2। ऑलराइट, तो इस कंस्ट्रक्शन को आप घर पे ड्रॉ करके देखें, समझें इसको, क्या ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑलराइट।